میرے کشمیر کے مجرم ہیں، عالم میں خاموشی ہے، میرے کشمیر کے مجرم ہیں، عالم میں خاموشی ہے، میری جاگیر کے مجرم ہیں، میری جاگیر کے مجرم ہیں، عالم میں خاموشی ہے، میری ڈاکٹر توقیر گیلانی ایک بڑا قافلہ لے کر تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر توقیر گیلانی نے یاسین ملک کی رہائی کے لیے لامحدود مدت کے لیے تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر دھرنا دے دیا۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین لیاقت حیات موجود ہیں۔ لیاقت حیات صاحب اس وقت تتری نوٹ پر موجود ہیں اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے جو آج طویل المدت دھرنے کی کال دی گئی تھی اس میں یہ ابتدائی طور پر ہی یہاں پر پہنچے ہیں۔ عوام کا جمع غفیر ہے اور نیشنلسٹ تنظیموں کی طرف سے بہت زیادہ فراخ دلی دیکھی گئی ہے، بہت زیادہ کارکنان دیگر جماعتوں کے یہاں آج ہم نے دیکھے نعرے اور نغمے آزادی کے الاپتے ہوئے۔ لیاقت حیات آج اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں، پوچھتے ہیں لیاقت حیات سے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ آج ہم ظاہر ہے اس وقت سیز فائر لائن پہ ہیں اور ابھی دھرنا کا آغاز ہو چکا ہے۔ دھرنا جن مقاصد کے لیے دیا جا رہا ہے ہم ان مقاصد کے ساتھ مکمل اس کی حمایت کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ڈاکٹر توقیر گیلانی سے بیٹھ کے یہ بات طے کی تھی کہ ہم آپ کے دھرنے میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے اور یہ طویل المدتی دھرنا جو ہے جب تک چلتا رہے گا ہمارے لوگ یہاں پہ آتے جاتے رہیں گے۔ ایک اور بات جو کہ لوگوں کے اندر ایک شکایات موجود رہی ہیں، لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ قوم پرست اکٹھے نہیں ہیں، نیشنلسٹ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے ہیں۔ تو ایک میسج تو یہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا، کوئی فیصلہ کن وقت آئے گا، کوئی بڑی تحریک آئے گی، اس میں ہم بغیر کسی جھاڑ کے، بغیر کسی کوئی بہت ٹرم کنڈیشنوں کے انکنڈیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم ایک نہ صرف یہ یکجہتی ہے بلکہ ہم میسیج دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیشنلسٹ اکٹھے نہیں ہیں، ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آزادی کا نعرہ مندم ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت ڈویژن کے طور پر ریاست جموں کشمیر کو مزید تقسیم کرنے کے ارادے ہمارے حکمرانوں اور مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ایوانوں کے اندر لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں، اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ ٹورزم اتھارٹی کے نام پر مزید کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو بالکل آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری تاریخ، ہماری جغرافیہ، ہماری ماضی، سارے چیزوں کو دفن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آخری راؤنڈ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو 15ویں ترمیم ہے، یہ جو اتھارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قبضے کی ایک نئی شکل ہے اور بدترین شکل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہر فوج بیٹھی ہوئی تھی، فوج مخصوص ایریوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اب ہر خوبصورت جگہ پہ بیٹھنا چاہتی ہے، اب ہر ٹورسٹ، اور اس کی وجہ بھی ایک اور ہے، وہ چونکہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک نیا یہاں پہ ڈسکشن آ رہی تھی کہ یہاں ٹورزم آئے گا، لوگوں کی اکنومیکل ایکٹیویٹیز بنے گی، لوگ یہاں سے منسلک ہوں گے، لوگ بیرون ملک نہیں جائیں گے۔ لہذا اس ٹورزم کو متاثر کرنے کے لیے آپ خود سوچیں کہ کیا گنوں کے سائے میں ٹورزم ہو سکتا ہے؟ آپ درہ حاجی پیر چلے جائیں، آپ کاؤٹا چلے جائیں، آپ نیلم ویلی چلے جائیں، مطلب فوج کھڑی ہے، لوگوں سے شناختی کارڈ مانگتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، خوفزدہ کرتی ہے، کون آئے گا؟ لوگ تو آتے ہیں مطلب ریلیکس ہونے کے لیے۔ اب جب آپ فوج کو ساتھ بٹھائیں گے لوگوں کو تو لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ یہاں ٹورزم کو پروموٹ نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو 15ویں ترمیم کے ساتھ جو ہے اس کو یہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا نام بدلی کر کے اس پہ ایک مکمل ایک میونسپل کارپوریشن کے درجے پہ پہلے سے تھے، یہ ہمارا وجود۔ لیکن ہم یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میں سپیچ میں بھی کہوں گا، اگر خدا نخواستہ کوئی 15ویں ترمیم کی کوشش کی گئی جس طرح کا مسودہ ہے، جس طرح کا وہ جو سلسلے ڈسکشن میں ہیں، تو پھر یہاں سے ہم گیٹ توڑیں گے، اس طرف جائیں گے، پھر لائن آف کنٹرول توڑیں گے۔ لیاقت حیات صاحب ایک چیز گزشتہ دنوں میں دیکھی گئی ہے کہ قوم پرست رہنماؤں کے حوالے سے اور جو قوم پرست کارکنان ہیں دیگر جماعتوں کے، ان کے حوالے سے ہمارے ارباب اختیار ایسے الفاظ، ایسے جملے بولنا شروع ہو گئے کہ ایک نئی فضا
कायम करने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है, और गैर मुल्की अकाउंट को शायद कुछ करने के लिए उनको अपने ऊपर एतमाद दिलाने के लिए एक नई कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बल्कि मेरी स्पीच पे बहुत सारी डिस्कशन आई है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो नामनासिब हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो प्राइम मिनिस्टर है, इतने टॉप लेवल पे बैठ के जो डिस्कशन वो कर रहा है उससे किसी ने क्यों नहीं पूछा? उसको क्यों नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ बड़ी रवादारी है, इखलाकियात हैं, तो एक दूसरे के लिए बड़ी गुंजाइशें मौजूद हैं, रिस्पेक्ट मौजूद है। तो जब वो तोड़ेंगे तो हमारे लिए क्या मसला है? हम पे कोई ये इल्ज़ाम लगाए, मतलब कोई खुद चोर चका ये लगाए कि ये फलां के एजेंट है, ये फलां के एजेंट है, तो फिर हम क्या, हम वापसी पे उनके लिए जो है वो अच्छे खताबात। मैं तो कहता हूँ अगर मतलब अपने उनको जो पालतू टाउ कर रहे हैं अगर बंद नहीं हुए तो दूसरी किस्त आएगी, जो दूसरी तकरीर का ऐसा आएगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खामोश हो जाएं, ज़बान बंद करें, नहीं तो फिर हम दोबारा जो बातें कहेंगे वो शायद आपको बर्दाश्त नहीं हो सके। तवील मुद्दती धरना ये ऐलान किया गया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से, और आप इस धरने में मौजूद हैं। धरने का आगाज़ हो चुका है, पैगाम क्या है कश्मीरियों के लिए? सर देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है, लोगों से ये गुजारिश है कि वो इस धरने को इसकी जितने अरसा तक ये धरना रहता है इसका टेम्पो नहीं टूटने दें। इसमें अपने अपने अंदाज में काफ़िला दर काफ़िला आते रहें। और यहाँ से एक मैसेज जो हम समझते हैं कि जो दुनिया को देने की ज़रूरत है, जो जाएगा, जो कहना चाहते हैं वो ये है कि ये चूँकि बिल्कुल उस लाइन पे है जो हमारी तकसीम की लाइन है, और हम यहाँ से बैठ के ये कहना चाहते हैं कि ये लाइनें मुस्तकिल नहीं हो सकेंगी, ये जबरी लाइनें हैं, ये हमारी मर्जी के खिलाफ हैं। और ये हमारा मसला इंसान को सियासी नहीं है, हमारा मसला इंसानी है। उस तरफ भाई रहता है, इस तरफ बहन रहती है, वहाँ माँ रहती है, यहाँ बाप रहता है। क्यों हमें तकसीम किया गया है? क्यों हम हमारी मर्जी के खिलाफ जो है आपने दो फौजें बैठाई हुई हैं? ये समझते थे कि इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी आवाम की एक कसीर तादाद उसको आप मूव किए यहाँ पर पहुँचेंगे, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भाई। मैं समझता हूँ कि अब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जेन्युइनली ये फील करना शुरू हो गए हैं कि उनकी कुर्बानियों को ख़त्म किया जा रहा है और उनकी रियासत के वसाइल पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उनके लीडरों को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए गुज़श्ता 1.5 महीना हमने ये कैंपेन इस रियासत के इस हिस्से के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमने ये कैंपेन चलाई है। और बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी और बहुत सारे लोग आएंगे। वो लोग जो पिछले 2-3 दिन से मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगेंडाज की जद में थे या मौसम के हवाले से लोगों को इश्यूज थे, अब जब लोग यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे औरतें आएंगी, यहाँ पे बच्चे आएंगे, यहाँ पे बुजुर्ग शहरी आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। और ये आज़ादी का धरना, तवील मुद्दती धरना कितना टाइम तक रह सकता है? और आज भी लोग अपने घरों में बैठे हुए ये धरने के लिए, और धरने के साथ बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। निकलो आज़ादी की खातर, यासीन मलिक की रिहाई की खातर। आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी कौम को तकसीम दर तकसीम करने का जो फार्मूला हमारे हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है और जिस डगर पे चल रहे हैं, क्या हम किसी नई तकसीम की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने ये तय किया है कि सीज फायर लाइन को हम मुस्तकिल सरहद बनाएंगे, और इसलिए बड़े प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ जो है वो लोगों को दबाया जा रहा है मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए, मुख्तलिफ तरामीम के ज़रिए। कुछ ज़ाहिर हैं, कुछ खुफिया हैं, दोनों तरफ। और ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि ये जो आज़ादी की आवाज़ है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। अब ये लोगों के ज़हनों में ये सारी की सारी तस्वीर सामने है कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ गिलगित के लोग मौजूद हैं, यहाँ नीलम से लेके भिम्बर तक हर जगह से लोग मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। और ये पीछे अपने घर, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिलियाँ छोड़ कर आए हुए हैं। तो ऐसे हज़ारों लाखों लोग और पीछे इनके मौजूद हैं जिनके सेंटीमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक, हमारे लीडरों को छोड़ा जाए, दूसरा, हमारी रियासत को जोड़ा जाए, और तीसरा, यहाँ से फौजें निकाल कर हमें आज़ादी दी जाए। तवील मुद्दती धरने की जगह तितरी नोट क्यों?
कि बुनियादी तौर पे ये कब्जे की जो लकीर है, ये हम बताना चाहते हैं लोगों को कि ये हम इससे नफरत करते हैं, इस लाइन से हम नफरत करते हैं, इसका खात्मा चाहते हैं। तो इस लाइन का इंतहाब इसलिए किया जाता है कि जब तक रियासत की वहदत बहाल नहीं होगी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। ये थे डॉक्टर तोकीर गिलानी और इस वक्त धरने से ये लाइव गुफ्तगू कर रहे थे और ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद लतीफ़ सीनियर एंकर हैं और सीनियर साफ़ी हैं आज़ाद कश्मीर के। इनका ताल्लुक इसी खित्ते से है, इसी इलाके से है और ये इस वक्त तवीलुल मुद्दती धरने में ये शरीक हैं। धरने में इतनी बड़ी आवाम, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? यकीनन ये आवाज़ जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए तवाना आवाज़ है। यासीन मलिक जैसा हुर्रियत रहनुमा आज पाबंद सलासल कर दिया गया, जिसको भारतीय जेल के अंदर कैद व बंद की जो सौंपते हैं वो बर्दाश्त करने पे आज मजबूर है। तो ये धरना उस बात की नमाजी करता है कि उस हुर्रियत रहनुमा को आज़ादी दी जाए, उसको रिहा किया जाए। और फिर यही नहीं, कश्मीरी जो है कश्मीरी वो 75 सालों से धरने दे रहे हैं, 75 सालों से वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो 75 सालों से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी जदोजहद अभी तक रंग नहीं लाई। उसकी वजह ये कि जो चाहे वो इस पार के कश्मीरी हो चाहे उस पार के कश्मीरी हो, उन कश्मीरियों को आज तक जो उनका बुनियादी हक है, हक खुद रियासत, वो नहीं मिल सका। और आज का ये जो जोश, ये जज्बा, ये जो आज़ादी के जो मतवाले हैं, ये मतवाले आज ये तकाजा कर रहे हैं कि यासीन मलिक को रिहाई की जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे लतीफ़ और इस तरह के मजीद वाक़यात तवीलुल मुद्दती धरने से हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।